سب سے پہلے اوبیسلی بات کریں گے سیاست کی، اور سیاست میں پی ڈی ایم کی۔ اس تحریک کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ آج اپوزیشن اتحاد خیبر پختونخوا کے علاقے مالاکنڈ میں جلسے کرنے جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم تحریک میں دوبارہ شرکت کر رہے ہیں، جبکہ ریلی کی صورت میں مالاکنڈ پہنچیں گے، لیکن مریم نواز لاہور میں ضمنی انتخابات کی وجہ سے متعلق اجلاس کی وجہ سے جلسے میں شرکت نہیں کر رہی۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کو ایک بڑا پیغام دے دیا ہے کہ اداروں پر حملے کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والوں کا علاج ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پی ڈی ایم کو چیلنج کیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو راولپنڈی آئے۔ ادھر سال بدل گیا ہے، لیکن اگر ہم انٹرنیشنل ارینا پہ بات کریں تو بھارت کے کالے کرتوت ابھی تک نہیں بدلے، اور بھارتی فورسز کی ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 2 سیکٹرز میں بھاری ہتھیاروں سے سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب تعصب پسند مودی سرکار کو سفارتی محاذ پر ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی 2 اہم کمیٹیز کی سربراہی نہیں مل سکی ہے، اور رکن ممالک نے بھارت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ بہت کرٹیکل سچویشن بھارت کے لیے اس لحاظ سے بھی ہے کہ اب بھارت مسلسل جس عمل پہ محنت کر رہا تھا ایک اپنا تشخص بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے، مسلسل بھارت کو سبکی ہو رہی ہے اسٹیج پہ۔ اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ایکسپریسو میں ایک بار پھر سے جوائن کیا۔ شاہ صاحب، اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں، بھارت کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو بھارت ایکسپوز بھی بہت ہو رہا ہے، جس طرح سے یہ بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے ایل او سی پر، اور خاندانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو یہ سارے معاملات پر پاکستان کی کیا ہم اوپینین کہیں گے، اور جس طرح سے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے بھارت دنیا کے سامنے؟ ایکسپوز تو وہ یقیناً ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، کہ وہ اس خطے کے امن کو تہ بالا کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پش پناہی کر رہا ہے، وہ افغانستان میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہاں استحکام ہو، وہاں امن ہو۔ اس کے باوجود پاکستان بھارت کا ہر محاذ پر، سفارتی محاذ پر مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ نے جیسے کہا، ایک تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی، اور میں نے کل ایک خبر دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو، جو کہ اب سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن چکا ہے، نان پرماننٹ ممبر بن چکا ہے، اس سے بڑی کامیابی ملی ہے، اور 3 بڑی اہم کمیٹیوں کی اسے صدارت کرنے کا موقع ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل کا نظام ہے اس میں تقریباً 30 کے لگ بھگ سب کمیٹیز اور سبسیڈری کمیٹیز ہوتی ہیں۔ اب اس میں قدرتی بات ہے، بھارت اگر ممبر ہے اس کو نمائندگی تو ملنی ہے اور اس کو ذمہ داری تو ملنی ہے۔ پاکستان بھی اب رہا ہے، پاکستان کو بھی ملی ہے، انشاءاللہ جب آئندہ ہوں گے ہمیں بھی ملے گی۔ لیکن دیکھنا یہ کہ اس کی خواہش کیا تھی۔ اس کی خواہش تھی جو کہ 1267 کی سینکشنز کمیٹی ہے، لسٹنگ کمیٹی ہے، بہت اہم ہے، وہ اس کا ممبر بننا چاہتا تھا، نہیں بن سکا۔ اس کی خواہش تھی کہ 1540 کمیٹی جو کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی کمیٹی ہے، اس کی وہ صدارت چاہتا تھا، وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کی خواہش تھی کہ افغانستان کے معاملات میں اس کو کیونکہ الگ رکھا گیا اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو کسی طریقے سے وہ پین ہولڈر بن جائے اور وہاں بھی وہ اپنا اس کی رائے جو ہے اس کو اہمیت ملے، لیکن اس میں بھی اس کو نمائندگی نہیں مل سکی۔ ہاں، انہیں کچھ کمیٹیوں کی نمائندگی ملی ہے، مثال کے طور پہ ایک جو لیبیا کی کمیٹی ہے اس پہ وہ ممبر بنا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور پاکستان کو اس پہ کوئی ڈائریکٹ نقصان نہیں ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کی کمیٹی کا وہ ممبر بنا ہے، اس میں بھی وضاحت کر دوں۔ نمبر 1، جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس کے پاس سینکشننگ اتھارٹی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 2 سال نہیں، یہ ممبر بھی 1 سال کے لیے بنے گا، اور وہ بھی سن 2022 میں۔ جو اس وقت موجودہ چیئر ہیں یہی کنٹینیو کریں گے۔ اور آخری چیز، ٹھیک ہے، تو تشویش میں ایک جملہ کہتا ہوں،
तशवीश यहाँ पैदा करने की कोशिश की गई कि भारत हम पर हावी हो जाएगा, हर नहीं। देखिए, ये जो कमेटीज हैं, यहाँ जो फैसले होते हैं वो इत्तफाक़ राय से होते हैं, और आपके इल्म में है कि चीन और पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग है, और उन्होंने हमें अश्योर कराया है कि जो हमारी लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, अगर उस पर कोई वार करेगा तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ पूरा उसका तावन जारी रहेगा। तो पाकिस्तान में ये जो एक तशवीश की एक खबर लगाई गई थी, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो जो कि आपने खुद जिक्र भी कर दिया, भारत की नीयत के हवाले से तो हमें कोई शक नहीं है कि भारत हर उस ओहदे को पाकिस्तान के खिलाफ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है जहां पे उसको मौका मिलता है। तो इसके लिए एक तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, नंबर वन, एक तो ये है। इस साथ दूसरा, शेख रशीद साहब वजीर दाखिला ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में सेकेंड वेव टेररिज्म की है, पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों को खतरा है और इसमें भारतीय हाथ को किसी तौर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, इसमें फिरका वारियत का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर भी क्या हम सिफारती सतह पे कुछ इक़दाम उठा रहे हैं कि भारत को एक्सपोज करें, उसका चेहरा दुनिया के सामने रखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत का चेहरा तो हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है। जो एक डॉसियर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया था, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमने शेयर किया है। उस डॉसियर में वो शवाहिद मौजूद है जो निशानदेही करते हैं कि किस तरह कहां भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसको पूरी तरह बेनकाब किया है। और फिर इसके साथ आप देखिए, एक इंकशाफ जो हुआ है EU डिसइंफो लैब ने जो किया है, उसने भी इस चीज को वाजे कर दिया कि किस तरह जाली NGOs के जरिए, जाली फेक साइट्स के जरिए, जाली पार्लिमानी ग्रुप्स के जरिए ये पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ये हम नहीं, ये एक तीसरी पार्टी कह रही है। तो एक्सपोजर तो भारत का हो गया, और सफारती महाज पर हमने ये जो डॉसियर है, हमने B5 से और जितने अहम ममालिक हैं उससे शेयर किया है। तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में भी हकायक सामने आ जाएंगे। दुनिया सुनती सबकी है, लेकिन हकायक को जानती है और बात की तह चल जाती है। इंशाअल्लाह आपने कहा हम क्या करेंगे, हम इनको भारत को न सिर्फ सफारती तौर पर एक्सपोज करेंगे, हमारी कोऑर्डिनेशन है हमारे दोस्तों के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के सतह पर, सलामती काउंसिल की सतह पर, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के मफादात का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ठीक हो गया। शाह साहब, चूंकि मैं नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आने से पहले अमेरिका की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी को जो बाइडेन हल्फ उठाने जा रहे हैं, इस हवाले से वजीर आजम ने भी हिदायत की है कि अमेरिकी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाए। चूंकि आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, किस तरह से आप रिलेशंस को बेहतर करने के लिए इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अमेरिका की क्या इकदाम किए जाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान की? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सदर बाइडेन इलेक्ट जो 20 तारीख को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे वो हालिया उमूर पर खासी एक महारत रखते हैं। वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं जब वो सेनेट में थे, वो मुल्क के नायब सदर रहे हैं, वो पाकिस्तान से और इस खित्ते से पूरी तरह वाकिफ हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, वो पाकिस्तान के बहुत से लोगों को, इदारों को जानते हैं, और हम में से बहुत से लोग उनको भी जानते हैं, उनकी सोच को, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम समझते हैं। ऑब्वियसली जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी, तो पाकिस्तान का उनसे इंगेज करने का इरादा है। आपके इल्म में है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया था कि ट्रांजिशन पीरियड में वो किसी से इंगेज नहीं करेंगे, जैसे ही वो जिम्मेदारी संभालेंगे तो वो इंगेज करेंगे। मेरा इरादा है इंशाल्लाह बहुत करीब मैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, मैं उनको खत लिखूंगा और खत के जरिए मैं उनसे इंगेजमेंट का आगाज करूंगा। शाह साहब, मुख्तसरन इस पे भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपने जिक्र दिया ट्रंप से तो बहुत अच्छी दोस्ती थी इमरान खान साहब की, और ट्रंप ने बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कन्फेस किया कि इमरान खान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जो बाइडेन और ट्रंप की बहुत मुखालिफत है, उन्होंने मानने तक से इनकार किया। तो नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहले हम थोड़ा ज्यादा तारीफी सिलसिलों में रहे हैं, अमूमी तौर पर हमने देखा है, मुश्किल तो नहीं होगी हमें?
देखिए जो रियासती ताल्लुकात होते हैं ना जी, वो अफराद का उनमें एक रोल जरूर होता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं, मफादात होते हैं, इदारे होते हैं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, मैं समझता हूँ कि इनकी इंगेजमेंट ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगी, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी। ट्रम्प साहब का एक अपना अंदाज था डिप्लोमेसी में, वो ट्वीट्स के जरिए इजहार करते थे, उनका अपना एक मुनफरिद अंदाज था। इस एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाज मुख्तलिफ होगा। इस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछली ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से मुंसलिक रहे हैं और वो पाकिस्तान को जानते हैं और पाकिस्तानी बहुत से उनको भी जानते हैं। सही सही ठीक हो गया। शाह साहब, अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें तो पीडीएम के हवाले से ये एहतजाज भी करने जा रहे हैं जो फॉरेन फंडिंग है उसके हवाले से, लेकिन अभी फिलहाल हमें कोई इनका शराजा बिखरा हुआ सा नजर आता है। कोई आपस में जिस तरह से इत्तेहाद की हुकूमत बार बार कह रही है कि इनके अंदर फूट पड़ चुकी है, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी, तो क्या कहेंगे आप इस मुल्क की सियासत पे और पीडीएम के अंदर जो इंतशार की कैफियत है सेनेट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है, समझने की जरूरत इस बात की है कि पीडीएम इत्तेहाद है क्या। ये कोई मुस्बत नहीं, ये एक मनफी इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस इत्तेहाद का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह हम इस हुकूमत को नीचा दिखा सकते हैं जी। किस तरह हम इमरान खान को जख्म पहुंचा सकते हैं, इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। फिर सब मनफी ख्वाहिशात हैं, और एक उनकी ख्वाहिश है कि किस तरह हम हुकूमत पर, इदारों पर दबाव बढ़ाकर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। और मेरी मुराद है एनआरओ, मेरी मुराद है वो नैब के केसेस जो इस वक्त जेरे समात हैं। तो जब ये सोच हो तो उसमें कोई नजरियाती हमआहंगी तो है नहीं, मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं और एक वक्ती ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जमा है। मुंतशिर तो इन्होंने आज या कल होना ही होना है। आपने देखा कि अभी तक वो इस्तीफों पर उनमें कोई यकसुई नहीं है। आपने देखा कि अभी इलेक्शंस पर ये बिल्कुल बज़िद थे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। तो पीडीएम के जो सदर है मौलाना फजल रहमान, उनके जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि फौरी इस्तीफे और उसमें मरियम बीवी भी शामिल है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो सका। सही सही। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च पे भी अभी कोई फैसला हतमी नहीं हुआ। 31 तारीख को जब डेडलाइन मुकम्मल होगी वो मिल बैठेंगे और फिर फैसला करेंगे। ठीक है, तो इससे जाहिर क्या होता है कि डिले क्यों हो रहा है? वो डिले इसलिए हो रहा है कि उनमें अभी तक इत्तेफाक दिखाई नहीं दे रहा। सही सही सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग हमें ज्वाइन किया और इंतहाई अहम मौज़ूआत पे जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात शामिल है उस पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। एक जानिब तो शाह साहब ने ये कहा कि पीडीएम के अंदर इंतशार मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसलसल बड़े पावर शोज कर रही है इस वक्त अपोजिशन। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। इसी नोट पर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत आपके मुंतज़िर।